نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کانگریس جنتا دل ایس مخلوط حکومت کی پریشانی میں دن بدن اضافہ۔ بیدر میں بارش سے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ بنگلور کی مشہور ملبوسات کے شو روم فورٹیز کی جانب سے رمضان میں مارکیٹنگ کے لیے چھاپے کتابچے کی سورہ یاسین میں کئی غلطیاں، عوام ہوئے ناراض، کمپنی سے معافی کا مطالبہ۔ امام تراویح کے خون سے ہولی کھیلی گئی، جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے پر امام ہوئے لہولہان۔ گورکھپور بھائی پر جان لیوا حملے کے بعد ڈاکٹر کفیل نے کہا میں جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ 1000 سالہ قدیم مندر میں افطار پارٹی، 500 مسلمانوں کی شرکت، آرتھی استھل کے نزدیک ہوئی نماز۔ نیرو مودی پہنچے برطانیہ، مانگی سیاسی پناہ، ایک رپورٹ۔ عظمت قرآن کریم و تحفظ قبلہ اول کانفرنس کا انعقاد ہوا دہلی میں۔ کیس واپس لینے کے بجائے پتھر بازوں کو گولی مار دینی چاہیے، بی جے پی رکن پارلیمنٹ کا بیان۔ گوئٹے مالا کی ایک بدنصیب خاتون کے خاندان کے 50 افراد آتش فشاں نے نگل لیے۔ مسجد حرام کے ائمہ، علماء اور وزیر حج کی شاہ سلمان سے ملاقات، تصاویر ہوئی وائرل۔ دبئی گھر سے 5 لاکھ درہم چرانے والی ملازمہ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئی۔ کویت میں تحریف شدہ اذان نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ روہنگیا مسلمانوں کی ملک بدری اور آسٹریا کی مساجد کا بند ایک ہی ذہنیت کے دو نام ہیں۔ بلیٹ بکسوں میں آگ، عراق پر ضرب لگانے کا منصوبہ ہے، العبادی کا بیان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر بنگلورو سے ہے۔ جنتا دل ایس و کانگریس کی مخلوط حکومت ابھی وزراء کے قلمدانوں کی تقسیم کے بعد پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مصروف ہے، تو دوسری ایک اور پریشانی یہ بڑھ گئی ہے کہ کمار سوامی کابینہ میں جماعت ہشتم پاس مسٹر جی ٹی دیوے گوڑا کو وزیر اعلیٰ تعلیم کا قلمدان دیا گیا ہے، جس پر کمار سوامی سوالوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ تعلیم مسٹر جی ٹی دیوے گوڑا بھی اپنے قلمدان سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ اپنا قلمدان تبدیل کرنے کے تعلق سے چیف منسٹر سے اپیل کریں گے۔ البتہ انہوں نے واضح کیا کہ اگر چیف منسٹر ان کی درخواست قبول نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنی اس بڑی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے۔ اس ضمن چیف منسٹر کرناٹک نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا وزیر کون سی کلاس پاس ہے، کس وزیر کی تعلیمی لیاقت کیا ہے۔ مسٹر کمار سوامی نے اپنی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی سائنس کی پڑھائی کی تھی اور میں ریاست کا چیف منسٹر ہوں۔ کمار سوامی نے میری تعلیمی لیاقت کے لحاظ سے مجھے وزارت مالیات دینی چاہیے۔ اب خبر بیدر سے۔ بیدر شہر میں بارش سے سڑکوں کی خستہ حالی اور بھی ابھر کر سامنے آئی ہے۔ بارش نے شہر کو تربتر کر دیا، تاہم بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو جانے کے باعث راہگیروں کو کافی پریشانی اٹھانی پڑی ہے۔ کئی جگہ سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے۔ محکمہ بلدیہ کی جانب سے نالیوں کی عدم صفائی کی وجہ سے نالیوں کا اٹا ہوا گندا پانی ابھر کر سڑکوں پر آ گیا، جس کی وجہ سے تعفن پھیل گیا ہے، جس سے وبائی امراض کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ رمضان مبارک میں مصلیان مسجد کو مساجد تک جانے کے لیے کافی دشواری ہو رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے محکمہ برقی کی جانب سے بار بار برقی کی مسدودی نے عوام کو اور پریشان کر دیا ہے۔ بارش نے مجلس بلدیہ کی پول کھول دی ہے۔ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ضلع انتظامیہ اور مجلس بلدیہ کی جانب سے کوئی ٹھوس منصوبہ پر ابھی تک عمل نہیں ہو سکا ہے، جبکہ ایسی صورتحال کئی بار آئی اور عوامی نمائندوں کو بھی اس جانب توجہ مبذول کروائی جانے کے بعد بھی یہ مسئلہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے۔ اب خبر بنگلورو سے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اس کا کاروبار بہترین موقع سمجھتے ہوئے ہر تاجر اور تجارتی کمپنیاں گاہکوں کو لبھانے اور قریب کرنے کے لیے مختلف قسم کی مارکیٹنگ منصوبے بناتی ہے، اور اسی میں سے نماز ٹائمنگ کے کتابچے، سحری و افطاری ٹائمنگ کے کتابچے،
कैलेंडर वगैरह भी बनाकर मसाजिद वगैरह में तकसीम किए जाते हैं। मगर यहाँ माह रमज़ान से चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाली फोर्टिस नामी ऑनलाइन मलबूसात की कंपनी की जानिब से सूरह यासीन को कन्नड़ा और अरबी में छाप कर किताबी शक्ल देते हुए मसाजिद में हज़ारों की तादाद में बांटा गया है। मगर इधर कुछ अफराद ने दफ्तर सीधी बात पहुँचकर मज़कूरा कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया है कि कंपनी ने अपनी मार्केटिंग के चक्कर में कुरान और सूरह यासीन का मजाक उड़ाया है। इसमें कई सारी गलतियां हैं जिस पर नज़र किए बिना कंपनी ने छाप भी दिया और फिर चेन्नई और बेंगलुरु समेत इस कंपनी की जहां जहां शाखें हैं सब जगह मसाजिद में बांट रही है। शिकायत कुनंदगान ने सीधी बात के एडिटर से अपील की थी कि इस सिलसिले में कंपनी से वजाहत तलब करें कि ये जानबूझकर शरारत की गई है या कोई और मकसद है। इस सिलसिले में सीधी बात के एडिटर ने फोर्टिस के कॉल सेंटर से रब्ता करने के बाद मीडिया मैनेजर विजय नामी शख्स का नंबर हासिल करके इस सिलसिले में गुफ्तगू की और कहा कि वजाहत तलब करें, तो उनका कहना था कि इनकी गलती नहीं है, ये प्रिंटर की गलती है। तो पूछा गया कि तकसीम करने से पहले और छपाई से पहले किसी आलिम को दिखाया गया था, तो कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। एडिटर सीधी बात ने दबाव के साथ विजय से मुतालबा किया कि इस सिलसिले में आप कंपनी की जानिब से वजाहतनामा और माफ़ीनामा जारी करें। तो विजय ने कहा कि कंपनी के आला अहदेदारों से इस सिलसिले में गुफ्तगू करके गुज़िश्ता शाम 8 बजे तक इत्तला की जाएगी। मगर अब तक कंपनी की तरफ से किसी भी किस्म का वजाहतनामा नहीं आया है और विजय जो कंपनी के मीडिया मैनेजर हैं वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं और मुतल्लिका मैनेजमेंट के अफराद का राब्ता नंबर भी नहीं दे रहे ताकि राब्ता कर सके। इस किताब के सफ़ह नंबर 2, 6, 16, 22 और 24 और आखिरी सफ़ह 30 पर गलतियां हैं, जिसकी निशानदेही करके यहाँ इमेजेस को शेयर किया जा रहा है। शिकायत कुनंदगान ने अपील की है कि जिस मस्जिद में भी ये किताबचे तकसीम किए जा रहे हैं उसको रोक दें और मुतल्लिका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं कि कुरान की कलिमात में हेरा फेरी करके तकसीम की जा रही है। अब खबर रांची से एक अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है कि यहाँ पर एक इमाम पर कुछ शरपसंदों की जानिब से हमला करने की खबर मौसूल हुई है। रांची के अगड़ू गांव के इमाम तरावीह मौलाना अजहरुल इस्लाम और मौलाना इमरान साहब रात करीब 10 बजे के बाद तरावी पढ़ाकर अपने गांव नया सराय की जानिब बाइक से जा रहे थे कि इस बीच यह हमला पेश आया है। जब ये दोनों हजरात दिलादिली चौक पहुंचे तो स्कॉर्पियो और दीगर गाड़ी में सवार एक भीड़, जिनकी तादाद 20 के करीब बताई जा रही है, इस भीड़ ने इन दोनों को घेरा। जय श्री राम का नारा लगाने का हुक्म जारी हुआ। मुनाफराना तंजु तशनी और गाली गलोच का सिलसिला दराज होते होते मारपीट तक जा पहुंचा। मौलाना अजहरुल इस्लाम जय श्री राम का नारा लगाने पर राजी नहीं हुए। बिलाखिर संगी भेड़िए इन पर हाकी स्टिक और दीगर हथियारों से टूट पड़े। इसी दौरान मौलवी इमरान वहां से किसी तरह बच निकलने में कामयाब हुए। अलबत्ता उनके दूसरे भाई मौलाना अजहरुल इस्लाम को इस भीड़ ने पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। नाजुक हालत में उन्हें कट्ठल मोड़ के रांची अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन मरीज की संगीनी को देखते हुए फिर उन्हें मेडिको हॉस्पिटल ले जाया गया। मौलाना अजहर की हालत बदस्तूर नाजुक बताई जा रही है। रांची में कई रोज से फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने की खबरें मुसलसल आ रही थी। भाजपा युवा मोर्चा के जुलूस ने इस आग को मजीद भड़काया था। भाजपा युवा मोर्चा के जुलूस ने मुस्लिम अक्सरियत इलाके में पहुंचकर नारेबाजी की थी और फसाद की मुनज़्ज़म प्लानिंग की थी। इसके बावजूद ये गुंडे अब तक कानूनी गिरफ्त से दूर हैं और आज रात ये खूनी वाक़या पेश आया है। मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल ये साफ करती जा रही है कि भगवाई तबका 2019 के लिए पूरी तरह खून की होली खेलने के लिए कमर कस चुका है। इसके भेड़िए दंदनाते फिर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ये रिपोर्ट समीउल्लाह खान के फेसबुक पेज से ली गई है। हज की अदायगी का ख्वाब कौन नहीं देखता। हर मुसलमान का हज की अदायगी के साथ उनकी ज़िंदगी में दीनी इनकलाब लाना ही मकसद होता है। इदारा कारवान हरमैन बेंगलुरु गुज़िश्ता 5 सालों से इस मैदान में खिदमत अंजाम दे रहा है और किस्तवार रकम की अदायगी के साथ इस ख्वाब को पूरा करने में भरपूर मुआवनत फराहम करता है। 3 से 4 उलमा इकराम की ज़ेर निगरानी हज के तमाम अराकीन की अदायगी का ख्याल रखते हुए आज़मीन हज का भरपूर ख्याल रखना ही कारवान हरमैन का मकसद है। चलिए तशरीफ़ लाइए और कारवान हरमैन को खिदमत का मौका फराहम कीजिए। स्क्रीन पर पता और राब्ता नंबर दर्ज है। राब्ता करने के लिए हरगिज़ झिझक महसूस ना करें। अब खबर नई दिल्ली से। अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन केस के बाद चर्चे में आए डॉक्टर कफील के भाई काशिफ जमील पर
इतवार की रात नामालूम हमलावरों ने गोलियां चलाई हैं। गोरखपुर न्यूज लाइन की खबर के मुताबिक डॉक्टर कफील अहमद के छोटे भाई काशिफ जमील को इतवार की रात करीब 10:30 बजे गोरखनाथ इलाके में गोली मारी गई। 2 हमलावरों ने उन पर 3 गोलियां चलाई, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। जख्मी काशिफ का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। डॉक्टर कफील ने दी वायर से बात करते हुए बताया कि मेरे भाई काशिफ को 3 गोलियां मारी गई हैं। एक गोली गले पर और 2 गोली बाएं हाथ में लगी है। काशिफ तरावी पढ़कर गोरखनाथ मंदिर के नजदीक फ्लाईओवर के पास थे जब उन पर 2 नामालूम लोगों ने गोली चलाई। वो इस वक्त गोरखपुर के स्टार हॉस्पिटल में है। उन्होंने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा, ये शर्म की बात है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज गोरखपुर में मौजूद हैं और उनके शहर में होने पर भी ऐसी वारदात पेश आई है। ये रियासत के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल है। मालूम हुआ कि डॉक्टर कफील 4 भाई हैं। सबसे बड़े आदिल अहमद खान हैं और उसके बाद डॉक्टर कफील, काशिफ उनसे छोटे हैं। वाज़ेह हो कि अगस्त 2017 में BRD मेडिकल कॉलेज में एक हफ्ते में 60 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर कफील खान को लापरवाही के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उनको गुज़श्ता अप्रैल महीने में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। उनके बड़े भाई आदिल अहमद ने गोरखपुर न्यूज लाइन से बात करते हुए कहा कि हमारी पूरी फैमिली BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन केस के बाद से मुसीबतों में घिरी हुई है। अब खबर लखनऊ से। भगवान शिवा के कदीम मंकामेश्वर मंदिर ने इत्तेहाद और भाईचारे की एक अनोखी मिसाल कायम की है। इतवार को मंदिर में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें शिया और सुन्नी बरादरी के मारूफ शख्सियात समेत 500 मुसलमानों ने शिरकत की थी। इफ्तार पार्टी की खास बात यह रही कि मुसलमानों ने आरती स्थल के नज़दीक नमाज भी अदा की। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए महंत दिव्या गिरी ने बताया कि सभी मज़ाहिब मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग देते हैं। कभी भी मुसलमान भी कन्या पूजन करते हैं, यहाँ बड़ा मंगल स्टाल लगाते हैं। मजहबी कायदीन जैसे अइम्मा और महंतों को अपना काम करना चाहिए और हम आहंगी और भाईचारे को फैलाना चाहिए। अब खबर लंदन से। PNB के 13,400 करोड़ लेकर नीरव मोदी लंदन जा चुके हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में इतवार की रोज शाये हुई एक खबर के मुताबिक वहां उन्होंने सियासी पनाह मांगी है। ताहम बरतानिया के महकमे दाखिला ने इससे मुतालिक कोई इत्तला देने से मना किया है। हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी और उनके मामा चोकसी पर 13,400 करोड़ के फ्रॉड का इल्जाम लगाया था। हिंदुस्तान की वजारत खारिजा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हवालगी के बजाय कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के जरिए ही नीरव मोदी तक पहुंच बनाई जाए। बता दें कि हिंदुस्तान पहले से ही विजय माल्या की हवालगी के इंतजार कर रहा है। विजय माल्या पर भी IDBI और दीगर मुतादिद बैंकों से फ्रॉड का इल्जाम है। अब खबर नई दिल्ली से। बैतुल मक़दिस क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ा मसला बन गया है। खूरेज़ी काबिज़ाना सिलसिला हुनूस जारी है। यौम क़ुद्स मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करने और दुनिया में अमन सलामती को मुस्तहकम बनाए रखने का मौका है। इस किस्म का ख्याल कल्चरल काउंसिल जमहूरी इस्लामी ईरान डॉक्टर अली धगाई साहब ने ऐवान गालिब में मुनक़िदा आज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस व तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अव्वल कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए कहा। मज़ीद आपने कहा, हिंद और ईरान के दरमियान रवाबित कोई नए नहीं है। बहुत हद तक दोनों ममालिक तहज़ीब व तमद्दुन में एकसा हैं। नायब सफ़ीर फ़िलिस्तीन शेख अब्दुल रज़ाक़ ने सारे आलम बिलख़ुसूस ममलिकत इस्लामिया को मुतवज्जह करते हुए कहा, मस्जिद अक़सा अहले फ़िलिस्तीन की सूरत हाल सब जानते हैं, किस तरह तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, लेकिन वहाँ अमन व अमान की फ़िक्र किसे है। मौलाना सैयद सादिक हसन ने खिताब करते हुए कहा कि आज कौम मिल्लत में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ के क़याम की अशद ज़रूरत है, ताकि फतवा देकर कमज़ोर करने के अलावा जग हंसाई का मौका दिया जाए। गुरुजी बाबा शरणानंद जी महाराज ने कहा, मजहब, समाज और बरादरी के नाम पर लोग बहुत लड़ चुके, अब अपने देश को बनाइए, बटने मत दीजिए, सब गले लगाइए। आज की कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी, सदर ऑल इंडिया मुत्तहिदा मुस्लिम महाज थे और निज़ामत के फ़राइज़ जावेद रहमानी, चीफ एडिटर साहिबान ने बखूबी अंजाम दिए। इजहार ख्याल करने वालों में मौलाना शकीलुर रहमान कासमी पहाड़गंज, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कासमी, भूपेंद्र सिंह सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर रमेश कुमार पासी सदर इंटरनेशनल पीस मिशन, शाहिद सिद्दीकी सदर अंजुमन इस्लाही सिद्दीकी, मशहूर व मारूफ समाजी कारकुन शफी दहलवी, मिस्टर माथोड़, सरदार बलविंदर सिंह, सुरेश सूद के अलावा मौलाना इल्मुल्लाह ने तिलावत कुरान करीम और नात पाक पेश की और हाफिज सहराब ने कौमी यकजहती व देश पर तराना पेश किया। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी के राज्यसभा MP DP विज से
पत्थरबाजों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा है कि कश्मीर में पत्थरबाजों के केस को वापस लेने की बजाय उन्हें गोली मार दी जानी चाहिए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक हफ्ते को DP विट्स ने कहा, मैंने अखबारात में कश्मीर में पत्थरबाजों पर दर्ज केस वापस लिए जाने के बारे में ढंग से नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि पत्थरबाजों को गोली मार देनी चाहिए। DP विट्स का बयान वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने राजनाथ सिंह को पहली बार पत्थरबाजी करने वालों का केस वापस लेते हुए उसे बच्चों की गलती करार देते हुए कहा था कि उनके मुस्तकबिल को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अब खबर ग्वाटेमाला से। ग्वाटेमाला में गुज़िश्ता हफ्ते आतिशफशां फटने से जहां कई जानें ज़ायि हुई, वहीं एक बदनसीब खातून ऐसी भी हैं जिनके खानदान के 50 अफराद इस आतिशफशां ने निगल लिए। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक जिस वक्त फ्योगो नामी आतिशफशां फटा, फलफरोश यूफीमिया गार्सिया सौदा सलफ लेने मार्केट गई हुई थी। यही वजह है कि वो बच गई। इस खूनी आतिशफशां में गार्सिया की वालिदा, बहन भाई, बच्चे, पोते पोतियां और खानदान के दीगर लोगों समेत 50 अफराद लापता हो गए, जिनकी लाशों की तलाश में वो अब भी मारी मारी फिर रही हैं। गार्सिया के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं लेते और उन्हें अब भी उम्मीद है कि उनके प्यारे जिंदा हैं और वापस मिल जाएंगे। शेल्टर में मुकीम 48 साल गार्सिया रोजाना कुदाल और बेलचा लेकर डेंजर जोन की तरफ निकल पड़ती हैं, जहां रजाकार और दीगर खानदान राख को खोद कर उसके नीचे दबे अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब खबर सऊदी अरब से। मस्जिद हराम के उलमा व अइम्मा किराम, वजीर हज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मक्का मुकर्रमा के क़स्र सफ़ा में मुलाकात की। अल अरबिया के मुताबिक शाह सलमान से मुलाकात करने वालों में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के उमूर के इंचार्ज शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज अस-सुदैस, अइम्मा किराम, मस्जिद हराम के मुअज्जिनीन और दीगर हुकाम शामिल थे। इस मौके पर सऊदी अरब के वजीर बराए उमूर हज डॉक्टर मोहम्मद बिन सालेह बंतन, सेक्रेटरी हज इंतजामी काउंसिलों के सरबराहान, तवाफ के निगरान इदारों और दीगर रहनुमाओं ने भी शाह सलमान से मुलाकात की। मुलाकात नमाज मगरिब से कबल हुई। बाद अज़ां तमाम मेहमानों ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से दिए गए इफ्तार डिनर में भी शिरकत की। क़स्र सफ़ा में आने वालों में शहजादा खालिद बिन फहद बिन खालिद, शहजादा मुक़रिद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद, शहजादा मंसूर बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज, शहजादा तलाल बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज, शहजादा खालिद बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज, शहजादा सत्ताम बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज, अलबाहा के गवर्नर शहजादा डॉक्टर हिसाम बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज, खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के मुशीर शहजादा डॉक्टर अब्दुल अजीज बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज, शिमाली इलाकों के गवर्नर शहजादा फैसल बिन खालिद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज, शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज वगैरह मौजूद थे। अब खबर दुबई से। दुबई में घर से 5 लाख दिरहम चुराने वाली मुलाजिमा सलाखों के पीछे पहुंच गई है। इस्तिगासे के मुताबिक 34 साल फिलिपाइनी मुलाजिमा ने घर से 12 परफ्यूम्स की बोतलें, एक लैपटॉप, डिजाइनर बैग, 5 अंगूठियां, 8 ब्रेसलेट, 2 हार, कानों की बालियां, कॉस्मेटिक्स, 3 मोबाइल फोन और 4 घड़ियां चुराई थी, जिनकी मालियत 5 लाख इमारती दिरहम के करीब बनती है। मुकामी अदालत ने मुलजिमा को चोरी का इल्जाम साबित होने पर 1 साल कैद की सजा सुना दी है। इसके अलावा सजा की मुद्दत खत्म होने के फौरन बाद मुत्तहिदा अरब इमारात से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। अब खबर कुवैत से। कुवैत में एक मस्जिद के चौकीदार ने तहरीफ शुदा अजान देकर हंगामा खड़ा कर दिया है। अल अहमदी सूबे की मस्जिद अल बौस में मज़कूरा शख्स ने अजान में अल्लाह अकबर के बजाय अल्लाह कुवैत अकबर के अल्फाज अदा किए। अजान के वक्त सड़क पर गुजरने वाले बाज़ राहगीरों ने इस वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसके नतीजे में अवामी हल्कों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। मकामी मीडिया ने इतवार के रोज़ बताया कि वाक़े का जिम्मेदार चौकीदार बांग्लादेशी शहरियत रखता है। वज़ारत औक़ाफ़ ने उसे हिरासत में लेकर पूछगिछ के लिए पेश कर दिया। कुवैती वज़ारत औक़ाफ़ में अल अहमदी सूबे की मसाजिद के इंतज़ामी सरबराह डॉक्टर अहमद अल अतीबी के मुताबिक ये वाक़या मस्जिद के नए चौकीदार की अपनी जिद्दत तराजी के सबब पेश आया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसाजिद को बंद करने और दीनी शख्सियात को मुल्क से निकालने पर एक दफा फिर ऑस्ट्रिया के खिलाफ सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल के इलाके एसियन में शब कद्र की मुनासिबत से मुनक़िद दुआ प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब से खिताब में उन्होंने ऑस्ट्रिया के वज़ीर आज़म सेबस्टियन क्रूज को मुखातिब करते हुए कहा कि ऑस्ट्रिया में मसाजिद को बंद किए जाने और मुसलमानों को मुल्क बदर किए जाने से सलीब और हिलाल की जंग शुरू हो जाएगी और इसके जिम्मेदार आप होंगे। अपने पैगाम में
آسٹریا کے لیے نہیں بلکہ پوری یورپ کے لیے ہونے پر زور دیتے ہوئے صدر ایردوغان نے کہا کہ میں یہ بات کہتے ہوئے صرف آسٹریا کو نہیں بلکہ پورے یورپ کو مخاطب کر رہا ہوں اور مغرب سے کہتا ہوں کہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے آپ میں آئے. اگر آپ اس شخص کو درست رویہ اختیار کرنے کی ترغیب نہیں دیتے تو یہ مسئلہ ہلال اور صلیب کی جنگ کی طرف چلا جائے گا. صدر ایردوغان نے کہا کہ ہمارے بھی اپنے مطابق اقدامات موجود ہیں. ہم آسٹریا میں موجود 2,50,000 مسلمان بھائیوں پر ظلم کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. اس معاملے میں جو ضروری ہوا کیا جائے گا. صدر ایردوغان نے کہا کہ ذہنیت کے اعتبار سے رخائن کے مسلمانوں کو ان کے گھر بار سے اور ملک سے نکالنے میں اور یورپ کے مرکز میں مسلمانوں کی مساجد کو بند کرنے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. دعا پروگرام میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی تھی. اب خبر عراق سے. عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے تمام صوبوں کی انتظامیہ کو حکم جاری کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی گوداموں کے حفاظتی اقدامات کو سخت بنایا جائے. اتوار کی شام العبادی نے کہا بغداد کے ضلع الرصافہ میں الیکشن کمیشن کے گوداموں اور بیلٹ بکسوں میں آگ لگنے کے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. یہ مشتبہ آگ اسی روز لگی ہے جس روز چند برس پہلے داعش تنظیم نے موصل شہر پر دھاوا بولا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کارروائی عراق اور اس کی جمہوری روش کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے. ہم ملک اور عوام کے امن و استحکام کو متزلزل کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھ کے ساتھ نمٹیں گے. عراقی وزیر اعظم نے زور دیا کہ سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کے گوداموں کی بیرونی سیکورٹی ہے اور عمارتوں کے اندر گوداموں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں. اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں. اجازت سے پہلے وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والقلم وما يسطرون.